वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है ओ लेवल केमिस्ट्री के यूनिट 2 हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2.1 मेजरमेंट एंड प्योरिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट ऑफ टाइम, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। Time can be measured using a stopwatch or stopclock, which are usually accurate to 1 or 2 decimal places. The unit of time normally used are seconds or minutes, although other units may be used for extremely slow reactions. For example, roasting. 1 minute is equal to 60 seconds. Temperature. Temperature is measured with a thermometer, which can be normally give reading to the nearest degree Celsius. Digital thermometers are available, which are more precise than traditional thermometer. Traditional thermometers rely upon the uniform expansion and contraction of liquid substance with temperature. They tend to be more accurate than digital thermometer, which often need to be recalibrated. The unit of temperature are डिग्री सेल्सियस। ये मैं आपको पहले भी मेजरमेंट का टॉपिक समझा चुका हूँ, जिसमें कलेक्शन ऑफ गैसेस, स्पीड ऑफ रिएक्शन, मास, टाइम, टेम्परेचर और इनका सब। तो सेम बात है इसमें भी। टाइम स्टॉपवॉच की मदद से मेजर किया जाता है। अब तो डिजिटल स्टॉपवॉच भी है, तो टाइम मोर एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स और मिनट यूज की जाती है, और ज़्यादा स्लो रिएक्शन के लिए तो आप और यूज कर सकते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। टेम्परेचर थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, और अब डिजिटल थर्मोमीटर भी अवेलेबल है, पर जो हमारे ट्रेडिशनल थर्मोमीटर थे लिक्विड वाले, वो ज़्यादा बेहतर थे। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। Mass is measured using a digital balance, which normally give reading to 2 decimal place. This must be set to 0 before use. मैच डिजिटल बैलेंस से मेजर किया जाता है, जो रीडिंग देता है 2 डेसिमल प्लेस तक। दिस मस्ट बी सेट टू 0, इससे पहले 0 पे सेट किया जाता है बिफोर यूज करने से पहले। द स्टैंडर्ड यूज ऑफ मैस इज किलोग्राम। मैस की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और जो छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं या कम मिकदार में सब्सटेंस होता है तो हम ग्राम यूज करते हैं, बट इन केमिस्ट्री ग्राम आर मोस्ट ऑफन यूज। 1 kilogram is equal to 1000 grams. Volume of liquid. Volume of a liquid can be determined using several types of apparatus depending on the level of accuracy needed. For approximate volumes, where accuracy isn't an important factor, measuring cylinders are used. For approximate volumes, जिधर accuracy से आपने measure नहीं करना, आपने मतलब अपने हिसाब से बस डाल लेना और यूज कर देना है, तो measuring cylinder लिया जाता है। There are graduated have a scale so can be used to measure and are available in 25 cm3, 50 cm3, 100 cm3 and 250 cm3. Pivots are the most accurate way of measuring a fixed volume of liquid, usually 10 cm3 or 25 cm3. Burettes are the most accurate way of measuring a variable volume of liquid between 0 cm to 50 cm. पिपेट आप फिक्स वॉल्यूम मेजर करते हैं, आपको इतना चाहिए आप डालते हैं, क्योंकि जब आप पिपेट को इससे रिलीज करते हैं तो वो एकदम से जब एयर आउट होती है तो फुल रिलीज हो जाता है। अगर आप ज्यादा डाला होगा तो वो ज्यादा भी रिलीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ gases sometimes needs to be measured and is done by collecting in a granted measuring apparatus. Gas syringe is usually the apparatus used. Measuring cylinder inverted in water may also be used provided the gas is in water soluble. If the gas happens to be heavier than air is colored, the cylinder can be used upright. Criteria of purity, paper chromatography आ गया. The technique is used to separate substances that have different solubilities in a given solvent. For example, different colorings that have been mixed to make black ink. A pencil line is drawn on chromatography paper, जिसे हम datum line भी कहते हैं, and spot on the sample are placed on it. Pencil is used. This is the ink would run into the chromatogram along with the sample. पेंसिल तब यूज की जाती है कि ये सब्सटेंस फैलता नहीं है। अगर इंक आप यूज करेंगे तो उसका कलर भी क्रोमेटोग्राम पे, जो पेपर हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसे क्रोमेटोग्राम कहते हैं,
तो उस पर वो फैल सकता है। The paper is then lowered in the solvent container, making sure that the pencil line sits above the level of solvent so the sample don't wash into the solvent container. उसे सॉल्वेंट कंटेनर में रखा जाता है जिसमें सैंपल पड़ा होता है और पेंसिल लाइन को ठीक सैंपल की टॉप पे रखा जाता है सॉल्वेंट पे, जिससे कलर फ्लो करना शुरू करता है और फिर आप मेजर करते हैं डेटम लाइन से डिस्टेंस और सारा। The solvent travels up the paper by calibration, taking some of the color substance with it. Different substances have different solubilities, so will travel at different rates, causing the substance to spread apart. Those substances with higher solubility will travel further than the others. जिसकी solubility ज्यादा होगी वो ज्यादा travel करेगा, datum line से ज्यादा ऊपर जाएगा. Interpret simple chromatogram. If two or more substances are the same, they will produce initial chromatogram. If the substance is a mixture, it will separate on the paper to show all the different components are separate spots. अगर तो कंपोनेंट जो आपका सॉल्वेंट या जो मिक्सचर है वो मिक्सचर है, अगर जो आपका सब्सटेंस है वो मिक्सचर है, तो डिफरेंट कलर शोज होंगे क्रोमेटोग्राफ में और डिफरेंट टाइप के शो होंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है मिक्सचर। और अगर सेम है तो फिर उनका जो पॉइंट्स होंगे वो सेम होंगे, कलर में भी डिफरेंट बट यूजली वो सेम होते हैं। An impure substance will show up with more than one spot. A pure substance should only show up with one spot. जो impure substance होता है वो वन से ज्यादा स्पॉट्स में आता है क्योंकि impurity की वजह से एक impurity का स्पॉट आप कह लें और एक प्योर का, तो जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका एक ही स्पॉट होता है, एक ही जगह पे शो होता है। Assessing purity. Pure substance melt and boil at specific and sharp temperature. जैसे हम कहते हैं ना प्योर सब्सटेंस का फिक्स टेम्परेचर होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें अगर इम्प्योरिटी ऐड होगी तो इसमें भी साल्ट ऐड कर लें तो ये 100 समथिंग हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। मिक्सचर हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेल्ट और बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। मेल्टिंग और बॉइलिंग की रेंज डिफरेंट है मिक्सचर के लिए क्योंकि उनमें डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं और जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंस होते हैं। Melting and boiling point data can therefore be used to distinguish pure substance from mixture. आप मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट में, जैसे मिक्सचर में जैसे हमने वाटर डाला हुआ है तो आप उसका जब मिक्सचर आप कर लें अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल यूजली 70-71 पे बॉइल शुरू हो जाता है, वेपोरेट होना भी शुरू हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आप उसे कह लें। तो अगर वो 78 पे अल्कोहल के वेपर्स ऊपर जाते हैं आप कंडेंस करेंगे जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, तो 75 या 80 में जाके हो रहे हैं तो फिर वो प्योर नहीं है, इम्प्योर अल्कोहल था, इम्प्योरिटी थी उसमें। और इसी तरह जब वाटर 100 डिग्री में होता है, अगर वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट अप चला जाएगा और वो 100 समथिंग पे चला जाएगा। An unknown pure substance can be identified by experimentally determining its MP and BP. MP means melting point, BP means boiling point, and comparing to the data tables. अगर आपके पास एक सैंपल है जिसका आपको नहीं पता भी है क्या, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले लेते हैं फिर मेल्टिंग पॉइंट मेजर करते हैं, तो आप फिर उसे डेटा टेबल से मैच करके फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है। मिक्सचर मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर एज दे कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट भी होते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे बाहर होते हैं, बॉयल भी होते हैं क्योंकि उनमें काफी सारे सब्सटेंस होते हैं, वो काफी सारे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी. A pure substance consists of only one substance and contain nothing else. Pure substance एक ही substance से बना होता है, जैसे कार्बन है और CO2 को लेंगे तो CO2 ऑक्सीजन भी साथ आ गई, तो कार्बन प्योर तो ना रहा। इसी तरह to have a pure substance for food or drugs is very important as impurity could be dangerous even in small amount. Foods में इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इम्प्योरिटी से आपको डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं, डेंजरस है इस वजह से। और ड्रग्स में भी, अब एक बंदा ड्रग्स एडिक्टेड है, उसमें इम्प्योरिटी है ड्रग में, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर हिज लाइफ क्योंकि वो मर भी सकता है, कोई कोई ड्रग्स होती हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एनालिसिस इज रूटीनली यूज्ड टू असेस द प्योरिटी ऑफ फूड एंड ड्रग्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि ये प्योर है और इम्प्योर है और यह इम्प्योरिटी प्रेजेंट है।
For example, if a sample of water melts at exactly 0 degrees centigrade and boils at exactly 100 degrees centigrade, then the water is pure. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वो फिक्स बॉयल भी हो रहा है और फिक्स मेल्ट भी हो रहा है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे अपने, तो वाटर प्योर है. इफ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर aren't these exact values, then the water must be impure and contains other substance. It must be a mixture. Locating agent. लोकेटिंग एजेंट अब इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ते, मैं आपको जनरली बता देता हूँ. लोकेटिंग एजेंट, लोकेटिंग एजेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आप उन कंपोनेंट्स पे डालते हैं क्रोमेटोग्राम पे जो इनका कलर विजिबल नहीं होते, जो इनविजिबल होते हैं. आप लोकेटिंग एजेंट ऐड करते हैं जिससे कलर विजिबल होते हैं. मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन, डिफरेंट मेथड है प्योरिफिकेशन के. मिक्सचर ऑफ सॉलिड, इसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं. मिक्सचर ऑफ लिक्विड, तो देखते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड. Different density, magnetic properties, sublimation, and solubility can be used. For difference in solubility, a suitable solvent must be chosen to ensure the desired substance only dissolve it or not other substance or impurity. Mixture of liquid. Invisible liquid can be separated using a separating funnel or by decanting, pouring carefully. Example include when an organic product is formed in aqueous condition. ऑयल और वाटर को ले लें, और ऑयल तो लो डेंस होता है, कम डेंसिटी वाला होता है, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो आप आराम से पोर कर लेते हैं ऑयल के ऊपर से, दूसरे बीकर में ले लें. फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो ज़्यादातर लोगों को पता है क्योंकि ये सबसे इजी प्रोसेस है. यूज टू सेपरेट एन अनडिजॉल्व solid from a mixture of the solid and a liquid solution. For example, sand and mixture of sand and water. Centrifugation can be also used. Filter paper is placed in the filter funnel above another beaker. Mixture of insoluble solid and liquid is poured into the filter funnel. Filter paper will only allow the small liquid particles to pass through a filtrate. Solid particles are too large to pass through the filter paper, so will stay behind as a residue. जो soluble particles होते हैं वो तो पास कर जाते हैं वाटर के साथ फिल्टर पेपर से, जो insoluble particles होते हैं वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाते हैं, उसे हम रेजिड्यू कहते हैं. क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड में जैसे अब सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट है, तो आप उसे इवेपोरेटिंग डिश में डाल के एंड तक इवेपोरेट करेंगे जब तक पूरा वाटर ड्राई ना हो जाए और साल्ट पीछे रह ना जाए. तो जब वाटर ड्राई होगा तो साल्ट क्रिस्टल बन जाएंगी. Used to separate a dissolved solid from a solution when the solid is much more soluble in hot solvent than in cold. Copper sulfate from a solution of copper sulfate in a water. The solution is heated, allowing the solvent to evaporate to leave a saturated solution behind. Test if the solution is saturated by dipping clean, dry, cold gas glass rod into a solution. If the solution is saturated, crystal will form on the glass rod. The saturated solution is also to cool slowly, and solid will come out of the solution as the solubility decreases and crystal will grow. Crystals are collected by filtering the solution. They are then washed with cold distilled water to remove impurities and allowed to dry. तो एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये जो बता रही है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए कि इनसॉल्युबल सॉल्ट जब हम बनाते हैं और फिर उनको जब बनाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर में जब इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है तो उसे हम फिल्टर करते हैं, तो जो रेजिड्यू रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर उसे हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं तो क्रिस्टल बन जाते हैं. सिंपल डिस्टिलेशन, यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड एंड सॉल्यूशन सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन. Separate liquid and soluble solid from a solution. For example, water from solution of salt water or a pure liquid from a mixture of liquid. The solution is heated and pure water evaporates, producing a vapor which rises through the neck of the round bottom flask. The vapor passes through the condenser where it cools and condenses, turning into pure liquid H2O, which is collected in a beaker. After all the water is evaporated from the solution, only the solid solute will be left behind. तो आप दो, एक सॉलिड और एक वाटर का सोल्यूशन ले लें, उन्हें मिक्स कर लें प्रॉपर्ली, फिर उन्हें एक
वॉल्यूमेट्रिक क्लास में डालें, वॉल्यूमेट्रिक या कोनिकल क्लास में डाल के हीट प्रोवाइड करें, कंडेंसर फिट कर दें, टेम्परेचर नोट कर लें। वाटर का जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वाटर वेपोरेट होना शुरू होगा। वेपोरेट होकर वो वेपर्स कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंसर से एक साइड से हॉट वाटर इन होगा, कोल्ड वाटर इन एंड हॉट वाटर आउट दूसरी तरफ से होगा। तो जो कोल्ड वाटर इन होगा वो इन वेपर्स को कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा, और वो वापस वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और आगे आप बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैं आपको ऊपर एग्जांपल दे चुका हूँ, अल्कोहल एंड वाटर, तो ये भी वही दे रहा है। यूज्ड टू सेपरेट टू ऑफ मोर लिक्विड्स आर admissible with another ethanol and water from a mixture of a two. The solution is heated to the temperature of the substance with the lowest boiling point. This substance will rise and evaporate first, and vapor will pass through a condenser where they cool and condense, turning into a liquid that will be collected in a beaker. All of the substance is evaporated and collecting, leaving behind the other component of the mixture. For water and ethanol, ethanol at boiling point of 78 degrees centigrade and water of 100 degrees centigrade. The mixture is heated until it reaches the 78 degrees centigrade, at which point the ethanol boils and distills out of the mixture and condenses into the beaker. When the temperature starts to increase to 100 degrees centigrade, heating should be stopped. Water and ethanol are now separated. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगी है कमेंट में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि आपको नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।